So as we are going to start chapter 6, triangle and its properties. And to based on triangles, first of all we will write what is a triangle. Triangle क्या है? It is a closed figure जिसकी 3 sides, 3 vertices and it has 3 angles. 3 एंगल होते हैं इसमें, 3 ही वर्टिसेस होते हैं. वर्टिसेस आर कॉर्नर पॉइंट्स लाइक ए बी एंड सी एंड 3 इसके साइड्स होते हैं. So it is a simple closed curve made up of 3 line segments. Triangle is a simple closed curve made up of 3 line segments. 3 line segments के लिए मिलके बना है और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? You will find 3 angles there. 3 angles मिल जाएंगे आपको. You will find 3 sides and you will find 3 vertices. 3 ही इसके sides होंगे, 3 ही इसके vertices और 3 ही इसके angles होंगे. Okay? So next is try these page 113. जिस चैप्टर जहाँ आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल उसके नीचे यहाँ try these given है. Here the chapter starting chapter 6 और यहाँ try these given है. These try these we are going to do now. Okay, so these are try these of page 114. So what is written here? Write 6 elements, 3 sides and 3 angles of triangle ABC. आपको क्या बताना है? एक ट्राइंगल है जो ABC, उसके तीनों साइड्स के बारे में और तीनों एंगल्स कौन से होंगे उसका नाम लिखना. So first of all you will draw a triangle ABC. Now we have to write what are its 3 sides and what are its 3 angles. 3 sides and we will write 3 angles. Now 3 sides are AB, one side, then there is BC, and next one is CA. Okay, and 3 angles are एक है angle A, another is B, and last one is angle C. तो आपने तीनों एंगल लिखे. आप इसको A एंगल भी लिख सकते हो, आप इसको BAC एंगल भी लिख सकते हो. ठीक है. So 3 angles आपने लिख दिए. Next is question number 2. Side opposite to vertex Q of triangle PQR. अभी हम ये सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं. इसमें आप एक PQR ट्राइंगल बनाओगे और उसका जो भी पूछा उसके बारे में वो आंसर करोगे. फिर आप LMN बनाओगे. नेक्स्ट में थर्ड वाले में आप RST ट्राइंगल बनाओगे. ओके, सो question number 2 now. And here you have to frame a triangle PQR. क्या given the name, so given the writing the same name. और क्या पूछा इसमें? Side opposite to vertex Q. Q vertex के सामने कौन सी साइड है? Opposite means सामने. इस Q vertex के opposite कौन सी साइड है? PR. So its answer is PR. Okay. Second part है. This is the first part. Question in this part 2, and here the name of triangle is L. Triangle L. And now what is asked? We are asked that angle opposite to side MN. N and side opposite angle कौन सा? opposite सामने. देखिए पूरी एलिमेंट सामने कौन सा करना है? N. So its answer is angle N. Third is triangle RST. RST, and what we are asked here, vertex opposite to side RT. RT के opposite कौन सा vertex है? RT लाइन में side के opposite कौन सा vertex है? ये vertex का नाम है S. So its answer is S. Okay? तो आपने जो भी आपको पूछा है, वर्टेक्स पूछा है ऑपोजिट या लाइन साइड पूछी है या एंगल पूछा है, वो आपको
लिख के बताना है. ओके. Next is look at figure 6.2. Classify each of the triangle according to its sides and angles. आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में साइड्स के बेस पे ट्राइंगल का नेम बताना है. ठीक है. सो एनीबडी हु कैन टेल मी कि साइड के बेस पे हम ट्राइंगल का नेम कैसे देते हैं? एनीबडी हु कैन टेल मी? यू कैन रेज योर हैंड्स एंड मैम विल अनम्यूट वन स्टूडेंट. साइड के बेस में आप कैसे नेम बताओगे ट्राइंगल का? साइड्स के बेसिस पे किसी को नेम्स याद है ट्राइंगल के? हाँ. यस. वेरी गुड. Very good, beta. When it is equilateral triangle, that means all sides are equal. When it is isosceles triangle, that means two sides are equal. When it is scalene, that means all sides are unequal. Now, on basis of angles, can you tell me the names of triangle? Angle के basis पे भी आपको triangle के names थे 5th class में. Do you remember? Angle के base पे कौन कौन से name किए थे? एंगल को चेक करके ट्राइंगल का नेम बताते थे. ये कौन सा ट्राइंगल है? इज देयर एनीबॉडी हु कैन टेल मी? यू कैन रेज योर हैंड्स. मृदुल. यस मृदुल. यस. वेरी गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. तीन ही थे बेटा. राइट एंगल ट्राइंगल आप तब लिखोगे जब आपके ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होगा. कौन सा एंगल 90 का होगा? ठीक है. ये 90 होगा तो इस पे आप लिखोगे इसका नेम राइट एंगल ट्राइंगल. अगर आपका कोई ट्राइंगल इस तरह से बना है, क्लोज है, उसकी आर्म किस तरह से है? बंद है. ठीक है. सारी आर्म बंद है, ओपन नहीं है, तब इसका नाम होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल. क्योंकि एक्यूट का मतलब होता है 90 से कम. इसके सारे एंगल्स 90 से कम होते हैं, जिसमें इसका नेम होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल. और जिस ट्राइंगल के अंदर आर्म ओपन होती है, अगर आर्म ऐसे हो उसके भी इस तरह से बंद हो अंदर की तरफ, तो आप इसका नेम लिखते हो एक्यूट एंगल ट्राइंगल. बट अगर आर्म ओपन हो लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ ओपन हो, अगर आर्म ओपन है तो ये बनता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ये भी बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल. अगर आर्म ओपन है then that will be obtuse angle triangle. और अगर आर्म्स इस तरह से बनी हुई है, ऊपर से भी, नीचे से भी और दूसरे साइड से भी, फिर आप लिखते हो उसको एक्यूट एंगल. एक्यूट मींस 90 से कम है सारे एंगल्स. जिसमें सारे एंगल्स 90 से कम हो उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलती है. जिसमें एक एंगल 90 का हो उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलती है. और जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए, जैसे ये एंगल है, ये 90 से बड़ा है, तो बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. फिर यहाँ में एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, so this is the obtuse angle triangle. Is it clear? राइट एंगल में एक एंगल 90 का होगा. एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सारे एंगल्स 90 से कम होंगे, इसकी आर्म्स क्लोज्ड होंगी. और ऑब्ट्यूज में इसकी एक आर्म ओपन होगी और इसमें एक एंगल का मेजर 90 से बड़ा होगा. इज इट क्लियर? तो इनके बेसिस पे आपको जितने भी फिगर्स अगले पेज पे बने हैं उनके नेम लिखने. ठीक है. लाइक फर्स्ट फिगर, इसमें आपने चेक करना है आर्म्स क्लोज्ड है. अगर क्लोज्ड है तो ये कौन सा एंगल हुआ? दिस इज एक्यूट एंगल. यहाँ एक एंगल 90 का है, सो इट इज राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ देखो ये आर्म्स, ये देखो ये सीधी है और ये पीछे को झुकी हुई है, ओपन है. ये जो लाइन है ये स्ट्रेट है, लेकिन जो ये लाइन है ये ओपन है, सो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा. इसमें सारी आर्म्स हैं, सारे जो एंगल्स हैं वो 90 से कम है, सो इट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ये देखो ये आर्म नीचे वाली जो बेस है इसके ऊपर सेकेंड आर्म ओपन है, बाहर की तरफ खुली हुई है, सो ये एंगल क्या होगा? ट्राइंगल का नेम होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. इसमें 90 बन रहा है, सो इट इज राइट एंगल ट्राइंगल. So this is acute angled, right angled, obtuse angled, acute angled, ये obtuse angled और ये फिर से right angled triangle. और अब आपने बताना है साइड्स के बेसिस पे, जिसमें दो साइड्स इक्वल है, तो ये कौन सा हुआ? आइसोसेलेस.
यहाँ पे सारी अलग अलग है तो स्केलिन, यहाँ पे दो सेम है आइसोसेलेस, यहाँ पे सारी सेम है तो इक्विलेटरल, यहाँ पे दो सेम है तो ये हुआ आइसोसेलेस, दो सेम है तो हुआ आइसोसेलेस। ठीक है, तो साइड के बेसिस पे भी हम आंसर्स लिखेंगे और एंगल के बेसिस पे भी हम सारे आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तो लेट अस राइट डाउन सैंपल ये साइड कर दिया है। कंडीशन भी आपको मालूम होना चाहिए बेटे क्लियरली हो दैट अगर आपको साइड से पूछा है तो आपकी जो एंगल्स के ट्रायंगल्स के नेम है वो स्केलिन, इक्विलेटरल या आइसोसेलेस है। क्वेश्चन नंबर 3 now अब आपको नेम ऑफ ट्रायंगल बताना है। नेम ऑफ ट्रायंगल on basis of sides and then on basis of angles। इसमें angles कैसे बनते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या आंसर आ रहा है? आइसोसेलेस और इधर है acute angles triangle। acute angles triangle। For B part, we have scalene and right angle triangle. The scalene and right angle triangle. For part C, it is isosceles and acute angle triangle. Isosceles and acute angle triangle. Next is equilateral and acute angles. Equilateral and acute angle triangle. Next is part 5 and it is obtuse angled and isosceles. Isosceles and obtuse angled triangle. Next is isosceles and right angled triangle. Triangle angled triangle. होप सबने ये लिख लिया और ये क्लियर भी है। अभी आप एक नई टर्म सीखोगे, न्यू टर्म वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, पहले आप इसको लिख लो बिकॉज उसके लिए आपको थोड़ा अटेंटिव होके बैठना है। कंप्लीट इट फर्स्ट। टू टर्म्स आप सीखने वाले हो, मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। दो टर्म सीखोगे। हरिया I hope all of you have completed this. Now what is median of a triangle? एक triangle का median क्या होता है? देखो जब median word बना है MED लिखा है बट ये MID से बना है, mid point से बना है। Actually जो median है this is derived from the word mid point। ठीक है, ये mid point से बना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि एक ट्रायंगल का मीडियन कहाँ पे होता है। आपको ट्रायंगल की साइड्स पता है, आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस पता है, आपको ट्रायंगल के एंगल्स पता है। नाउ यू हैव टू डिस्कवर फॉर मीडियन। ट्रायंगल का मीडियन कहाँ होता है? बहुत ही सिंपल है इसको। ठीक है, क्या करोगे आप, एक ट्रायंगल बना लो।
तो दिस इज ट्रायंगल। इसमें किसी भी एक साइड के ऊपर मिड पॉइंट बना, मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल सेंटर का पॉइंट। इफ दिस साइड इज ऑफ 6 सेंटीमीटर तो मुझे 3 पे एक पॉइंट बनाना है। अगर ये पूरी जो साइड है AB इस ऑफ 6 सेंटीमीटर तो मैं 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट बना दूंगी और इस पॉइंट का नाम दूंगी C। ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट, बिल्कुल जो हाफ में आता है। बना दिया। इसको ड्रॉ नहीं करना बेटे, जस्ट समझना है, अंडरस्टैंड इट। मान्या इधर देखो बेटे, बोर्ड पे क्लियर होगा तो फिर आप समझ जाओगे तो क्लियर है, लेकिन अगर नीचे लिखते रहे तो समझेगा कौन। तो इसमें आपने किसी भी एक साइड के ऊपर मिड पॉइंट बना लेना है और उस मिड पॉइंट को जो ऊपर टॉप पे जो पॉइंट है, जो टॉप का पॉइंट का नेम होती है इसका। तो जब आप किसी भी पॉइंट को उसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, मीडियन। ठीक है, जैसे आपने इस साइड का मीडियन निकाला वैसे ही आप इस ट्रायंगल के लिए ये भी इसके साथ मीडियन निकाला, वैसे इस साइड के साथ भी मीडियन निकाला। तो उसके लिए आपको इस साइड का मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर इसको ऑपोजिट साइड से ज्वाइन। तो ये क्या है, मीडियन। और अगर आप इस तरफ की साइड का फाइंड करना चाहते हो, पहले इसका फाइंड करो और इसको ऑपोजिट साइड से ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो, दैट इज आल्सो मीडियन। ओके, तो आप एक ट्रायंगल में कितने मीडियन फाइंड कर सकते हो, मैक्सिमम 3। क्यों 3? क्योंकि उसमें 3 साइड्स होती हैं। तो अगर आप बेस लाइन के साथ बनाओगे तब भी आपको मीडियन मिल जाएगा। अगर इधर आप राइट हैंड साइड वाली का मिड पॉइंट फाइंड करोगे तब भी मीडियन मिल जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड का मिड पॉइंट फाइंड करोगे तब भी आपको मीडियन मिल जाएगा। तो एक ट्राइंगल में आप कितने मैक्सिमम मीडियन फाइंड कर सकते हो? योर आंसर इज यस, योर आंसर इज 3। यस, सो आप इसके लिए डेफिनेशन लिख सकते हो। ओके, अभी मैं लिखवा देती हूँ, मैं रब कर रही हूँ बिकॉज मुझे डेफिनेशन लिखवाना है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, नथिंग एल्स। ये सिर्फ अंडरस्टैंड करना था कि मीडियन क्या होता है। ओके, सो write down the definition. A median connects a vertex to the midpoint of opposite side. Okay, a median connects, ये लिखा है तो ये मिड पॉइंट से बनता है, so that आपको इजी रहेगा याद रखना। मिड पॉइंट लिखे रहने दो, नेक्स्ट लिखिए व्हाट इज मीडियन। राइट डाउन, a median connects a vertex, vertex को यूज, a vertex कोई भी आप vertex यूज कर लो, a vertex to the opposite, to the midpoint of opposite side, midpoint of opposite side। ये क्या होता है, ये किसी एक वर्टेक्स को उसकी सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है। ये जरूरी नहीं है ऐसा दिखे, ये ट्रायंगल की शेप पे डिपेंड करता है। अगर आपका ट्रायंगल इस तरह का बना हुआ है तो मीडियन आपको सेंटर में नहीं दिखाई देगा, और इस साइड का मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा तो मीडियन इस तरह से दिखाई देगा। ओके, तो मीडियन आपका इस तरह से दिखाई देगा क्योंकि इसमें मिड पॉइंट के साथ जाके जुड़ना है वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स में मिड पॉइंट के साथ जुड़ जाना है। जब आप वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दोगे देन यू विल गेट वो नीचे। ओके, सो मीडियन टर्म इज क्लियर टू यू। अब ये मीडियन जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन हो, इट विल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ट्रायंगल। अगर आपका ट्रायंगल इस तरह बना हुआ है तो आप देखिए इस वर्टेक्स को आप यहाँ ज्वाइन करना चाहते हो तो इस तरह का दिखता है। मेरे पास ये नहीं है तो मैं इसको रफली आउटलाइन करती हूँ।
अगर ऐसा स्केल से ड्रॉ, ठीक है, समझ गए? ये डिपेंड करता है जो ट्राइंगल है उसकी शेप कैसी है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। वेयर इज द मीडियन, आप कैसे फाइंड कर सकते हो किसी ट्राइंगल का मीडियन? अब ट्राइंगल का मीडियन फाइंड करना नहीं आएगा, क्वेश्चन में आएगा कि इस ट्राइंगल का मीडियन बताओ, या फिर मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मीडियन कौन सी, यहाँ पे किस नेम के साथ शो हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ लिखा होगा और आप बताओगे कि पर्टिकुलर ट्राइंगल में कौन सा जो अल्फाबेट्स हैं वो मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए बी कर रहा है, बी सी कर रहा है, सी डी कर रहा है, वहां पे लिखा होगा, ठीक है। सो आपको मीडियन की पहचान होनी चाहिए। अब इसको बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, जो हम नेक्स्ट टर्म करने वाले हैं, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन और ऑल्टीट्यूड को मिक्स कर देते हैं, इसीलिए मैंने साथ में मिड पॉइंट लिखा था, तो मैं आपको याद है कि मिड पॉइंट से बनता है, ठीक है। अब ऑल्टीट्यूड, अब ऑल्टीट्यूड और मीडियन दिखने में एक जैसे लगते हैं, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल जैसा बन जाए या ट्राइंगल है आइसोसेलेस बन जाए, स्केलिंग में ये अलग अलग शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग करने जा रहे हैं ऑल्टीट्यूड of triangle, triangle का ऑल्टीट्यूड क्या होगा? अब ऑल्टीट्यूड जो वर्ड है ये जुड़ा हुआ है 90 डिग्री से। ऑल्टीट्यूड जैसे राइट एंगल होता है ना, तो ये जुड़ा हुआ है 90 डिग्री के साथ। अब यहाँ आप मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हो, वहां आप 90 डिग्री को यूज करोगे। कैसे यूज करना है अभी बता रहे हैं। आई होप क्लियर, सबको क्लियर है? सपोज आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, दिस इज वन ट्रायंगल, तो हम इमेज कर लेते हैं सो दैट आपको समझ आ जाए डिफरेंस। दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी। अब जो मीडियन निकाला था, तो ए से आपने ज्वाइन किया था सामने वाली साइड का मीडियन, बट इसमें ऐसा नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप यहाँ पे और इस लाइन को ज्वाइन करते हो, इस पॉइंट को यूज करके आप यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ करते हो। राइट एंगल मींस 90 डिग्री का, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है ऑल्टीट्यूड। ए एल यहाँ पे क्या है, ऑल्टीट्यूड, ओके। यहाँ पे मैं नेम लिख देती हूँ ए सी। AC is median है, यहाँ पे AC median है, मिड पॉइंट से मिला, और जब हम 90 डिग्री के साथ इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये आपका क्या फ्रेम करेगा, ऑल्टीट्यूड, ठीक है। लाइक अगर मैं एक टेबल है उसके ऊपर एक ट्रायंगल रखूं, मैं ट्रायंगल रखूं और मैं इंच टेप के साथ उसकी हाइट मेजर कर रही हूँ, तो मेरे को हाइट इस तरह से नहीं मेजर करनी होगी, मैं हाइट कैसे मेजर करूंगी, बिल्कुल उसको नीचे से ये पॉइंट को बिल्कुल उसके बेस पॉइंट से ज्वाइन करूंगी जो 290 का एंगल शो कर रहा है। तो ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, सबसे छोटी लेंथ, अगर मैं इस पॉइंट को अलग अलग लाइन से नीचे बेस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, अलग अलग बेस पॉइंट यहाँ 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 सबसे ज्वाइन कर दिया, तो इस पॉइंट का नीचे वाले पॉइंट से जब सबसे कम डिस्टेंस होगा, इस एक पॉइंट का जिस पॉइंट के साथ सबसे कम गैप होगा, यहाँ और बढ़ रहा है, यहाँ और बढ़ जाएगा, ये गैप और हो जाएगा, जितना ये टेढ़ा जाएगा उतना इसका गैप बढ़ता जाएगा। तो अगर गैप सबसे शॉर्ट हो जाए तो वहाँ पे 90 का एंगल फ्रेम करता है और उस 90 के एंगल को हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड, ठीक है। क्लियर? तो अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस लाइन के साथ 90 का एंगल फ्रेम करता है। जो मीडियन है वो बेस के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दो वर्टेक्स को तो बन जाएगा, और अगर जो ये ए पॉइंट है वर्टेक्स है उसको सामने वाली जो साइड है उस पे आप 90 का एंगल ड्रॉ करो और वो ए से पास हो जाए तो वो बन जाएगा ऑल्टीट्यूड उस ट्रायंगल के लिए।
Is it clear? The height आपको बिल्कुल स्ट्रेट जाना है. जो हाइट है ए से नीचे की तरफ ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी. जब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी तो ये बेस लाइन के साथ 90 का एंगल फ्रेम करेगी. ठीक है? इज इट क्लियर? तो ये जो ऑल्टीट्यूड है दिस इज परपेंडिकुलर टू बीसी. जो AL है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू BC. AL is perpendicular to BC. ये साइन है परपेंडिकुलर का. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री. परपेंडिकुलर को आप 90 डिग्री बोलते हो, ना राइट एंगल. ठीक है? तो दो टर्म्स आपने जो आज सीखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आपको टर्म्स क्लियर नहीं है आप नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं कर सकते. अगर आप मिड पॉइंट के साथ ऊपर का वर्टेक्स ज्वाइन कर दो, ठीक है, किसी भी साइड का ले सकते हो, साइड की साइड का भी ले सकते हो, इस तरफ राइट हैंड साइड की साइड का भी ले सकते हो, तो फिर आपको मीडियन मिल जाएगा. अगर आप वर्टेक्स के साथ नीचे वाली साइड है वहां पे राइट एंगल ड्रॉ करो और ये जो दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको क्या बन जाएगा? वो मिल जाएगा ऑल्टीट्यूड फॉर दिस ट्राइंगल. ये हमेशा ही 90 का होगा. ये जरूरी नहीं होगा कि मिड से पास कर, नीचे वाली साइड के मिड से कर जाएगा अगर वो ट्राइंगल आइसोसेलेस या इक्विलेटरल हो. अगर वो ट्राइंगल टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, स्केलिंग हो जाए, तो फिर वो मिड पॉइंट पास नहीं करेगा. इज इट क्लियर? ठीक है बेटा. सो आपको ऑल्टीट्यूड क्लियर है? आई थिंक सो इट इज क्लियर. बाकी अभी आपको मैं हैंड रेस करने का बोलूंगी. भी एक आपको होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद आप हैंड रेस कर देना. अब आपने होमवर्क में क्या करना है? यहाँ पे ट्राइडीज गिवन है. नहीं, 6.1 सॉरी 6.1 इज गिवन.